Hare Krishna, as usual. Welcome you all in the congregation of Srimad Bhagavatam. We are trying to understand the Adi Lila, second chapter, the incarnation. Chaitanya Mahaprabhu is the person of Godhead. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Hare Nam Sankirtan Mahotsav ki Jai Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Jai Nitai Gaur Perumanate. Today was short kirtan because I'm not able to sing. That's the reason. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Naruttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraet Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavate Naishtike. Pranam mantra in the beginning. नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाभूतले श्रीमये जय भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते साधुदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषण्यवादी पाशेते तारणे उमा ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मृतमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं विष्णुमस्तापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त किंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम सुन रहे हैं आदि लीला के सेकंड चैप्टर, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान से मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन महान विभूतियों को उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि कृष्णा इज द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। पिछले उसमें बताया कि रूप गोस्वामी ने भी कहा है कि नारायण भगवान श्री कृष्ण का अवतार हैं, कृष्ण नारायण का अवतार नहीं। पुत्र पिता का अंश हो सकता है, लेकिन पिता पुत्र का अंश नहीं होता है। पिता जनक है, तो जनक के अंश आ सकते हैं, लेकिन अंशों में जनक का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आज 86 शुरू करते हैं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कर्णापतव
हर्ष विघ्ना वाक्य नहीं दोषा ये सब ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स करना पातव हर्ष विघ्ना वाक्य नहीं दोषा ये सब ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पतात्व हर्ष विज्ञान वाक्य नहीं दोष ये सब सिनोनिम Brahma mistakes, Pramada illusion, Vipralipsa cheating, Karuna apatava interpretation of the sense, Arsa of the authority or authoritative sages, Viplavagya in the wise speech, Nahi not, Dosha fault, Yeyi these, Saba all. Translation: mistakes, illusion, cheating, and defective perception do not occur in the saying of the authoritative sages. Prabhupada का purport है, Srimad Bhagavatam has listed the avatars, the planetary expansion of the Purusha, and Lord Krishna appears among them. But the Bhagavatam further explains Lord Krishna's specific position as the Supreme Personality of Godhead. Since Lord Krishna is the original Personality of Godhead, reason and argument establishes that his position is always supreme. Had Krishna been a planetary expansion of Narayana, the original verse should have been differently composed. Indeed, its order would have been reversed. But there cannot be the mistake, illusion, cheating, or imperfect perception in the words of the liberated sage. Therefore, there is no mistake in this statement that Lord Krishna is the Supreme Person of Godhead. The Sanskrit statement of Srimad Bhagavatam are all transcendental sound. Srila Vyasadeva revealed these statements after perfect realization, and therefore they are perfect. For liberated sages like Vyasadeva never commits error in their theoretical, rhetorical arrangements. Unless one accepts this fact, there is no use in trying to obtain help from the revealed scripture. Furthermore, Brahma refers to false knowledge or mistake, such as accepting a rope as a snake or an oyster shell as gold. Pramada refers to inattention or misunderstanding of reality. And Vipralipsa is a cheating propensity. Karana Pitava refers to the imperfectness of the material senses. There are many examples of such imperfection. The eyes cannot see that which is very distant or very small. One cannot even see his own eyelid, which is the closest thing to his eyes. And if one is disturbed by a disease like jaundice, he sees everything to be yellow. Similarly, the ears cannot hear distant sound, since the personality of Godhead and his planetary portions and self-realized devotees are all transcendentally situated. They cannot be misled by such deficiencies. तो प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से हम कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी जैसे महान वेदांतिस्ट वेद व्यास, नारद, असित, देवल, इनसे गलती नहीं हो सकती है। Why? They are perfect.
Some of them are the Saktavis avatar of the Lord, and therefore Lord can never make a mistake. Their statements are true. हम नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाए, तो बात दूसरी है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो भगवान को मानते ही नहीं है, कुछ उनको भगवान मानते जो भगवान है ही नहीं। जब इच्छा पूरी हो जाए, जब हमारा काम बन जाए, हमारे लिए वही भगवान है। हमारी जितनी इच्छाएं होती हैं, जो भी इच्छा है, वो हमारे पूर्ण होने में प्रारब्ध का बहुत बड़ा हाथ है। जो मेरे प्रारब्ध हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, इच्छा पूरी हो न हो। लेकिन भक्ति, भगवान से प्रेम, ये प्रारब्ध नहीं है, ये भगवान के अहितु की कृपा है, ये वैष्णवों के अहितु की कृपा है कि हमने थोड़ी सी इच्छा की और हम भगवान के बारे में हर रोज नई नई चीजें समझने और सुनने का अवसर प्राप्त करते हैं। कोई मिस्टेक नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई डिफेक्टिव परसेप्शन नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, हम अपनी आंखों की पुतली भी नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभार हम दर्पण में अपनी आंखों की पुतली देख सकते हैं। कभी कभार दर्पण ना हो तो वैष्णव जनों के मुख से हम अपने को देख सकते हैं। हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कितने ऑर्गन हैं, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन साइंस के द्वारा हमें यह पता चलता है कि मनुष्य में ऐसे ऐसे लिम्फ हैं, तो हमारे में भी होंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, तो जो साधु जन हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए उनका कहना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें कोई गलती नहीं है। जब सुखदेव कैसे हैं, सूता कह सकते हैं, मैत्रेय कह सकते हैं, जानवी कह सकते हैं, हजारों हमारे जो देवी देवता हुए हैं वो कह सकते हैं, तो हमें मानने में कठिनाई क्या। अभी बताएं कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्यों यहाँ लिख रहे होंगे, क्या जरूरत होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है। अगर नहीं मानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो जो है, जो इल्यूजन में होता है, उसका इल्यूजन दूर करने का कारण ही संत होता है। वृक्ष कहो न फल वखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धर्यो शरीर। जैसे आपको मालूम है, सब लोग वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन में रहना चाहते हैं, और प्रभुपाद ने वृंदावन को छोड़ा, पाश्चात्य देश चले गए। क्यों? परमार्थ के कारण, परमार्थ के लिए अपनी प्यारी वस्तु को उन्होंने त्याग दिया और भगवान के एम्बेसडर बनकर, गुरु परंपरा के एम्बेसडर बनकर सारे दुनिया में प्रचार किया। तो चाहे देवी देवता हो या आचार्य गण हो, उनके वक्तव्य में कभी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती है, कभी कोई डिफेक्टिव परसेप्शन हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है, हम ना समझे तो बात दूसरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी बहुत शानदार प्रश्न लिखा कि भागवता में अवतारा ही असंख्य है, हजारों अवतार हैं, अवतार हैं, अवतारी नहीं। अवतारी तो कृष्ण है। भागवतम के 2.9.33, 34, 35, 36 में ब्रह्मजी को ये बता रहे थे कि जो तुम देख रहे थे पहले नहीं था, कुछ समय बाद नहीं रहेगा, लेकिन मैं था। कल ध्रुव महाराज की कथा में हमने सुना, ध्रुव महाराज कहते हैं
हे भगवान, ये जो चीजें मैं देख रहा हूं, ये कभी व्यक्त होती हैं, कभी अव्यक्त होती हैं, कभी मैनिफेस्टेड, कभी अनमैनिफेस्टेड, और ये सब आपकी कृपा, आपके द्वारा सब संचालित है। तो जो भी भौतिक चीज के लिए हम प्रयास करते हैं, अगर हमारा प्रारब्ध होगा तो वो छोटे से प्रयास में मिल जाएगी, और प्रारब्ध नहीं होगा तो बड़े से बड़े प्रयास में भी नहीं मिल सकती है। लेकिन भगवत दर्शन, भगवान की भक्ति, प्रारब्ध ना भी हो तभी मिल जाती है। तो ये कहना है शास्त्रों का, और इस पे हमें विश्वास होना चाहिए कि न तो शास्त्र कभी झूठ बोलेंगे, न साधु गुरु भी झूठ बोलेंगे। तो क्या है? सत्यम वद, हमेशा सच बोलिए। और सच क्या है? शायद हमने पहले इसकी चर्चा की हो। सच क्या है? भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शन भगवत गीता में, या भगवान के बारे में लिखा हुआ श्रीमद् भागवता में, ये चैतन्य चरिता में भी सत्य है। बाकी जो हम सच बोलते हैं वो रिलेटिव सच है। हमने समझा, हमने फील किया, ये बात दूसरी हो सकती है। हम गलत भी हो सकते हैं, परसेप्शन अलग अलग है। जैसे बहुत शानदार लोग एग्जाम्पल देते हैं कि टेबल में अगर पानी का गिलास हो, उसमें आधा पानी हो आधा खाली हो, तो अपनी अपनी तरह से लोग कह सकते हैं ये पानी का गिलास है, तो दरअसल में गिलास तो पानी का नहीं होता, ये तो कांच का होगा, स्टील का होगा। हमने कहते पानी का गिलास है। और आपके किचन में अगर कोई डब्बे हो, किसी में चीनी हो, किसी में दाल हो, कहते दाल का डब्बा चीनी का डब्बा है। दाल और चीनी का डब्बा नहीं होता है, डब्बे में दाल और चीनी होती। तो मैं गिलास को उदाहरण दे रहा था। कोई कह सकता है कांच का गिलास है, कोई सकता है इसमें आधा पानी है, कोई कहता है आधा खाली है, कोई सकता है इसमें कुछ पानी है कुछ खाली है। अपनी अपनी तरफ से अपने विवेक के द्वारा हम उसको एक्सप्लेन करते हैं जो देखा। और हो सकता है उस गिलास में अगर 7 अप हो, तो हमने टेस्ट तो नहीं किया ना, हमने खाली देखा। हो सकता है उस गिलास में कैरोसिन हो, वो भी सफेद रंग की है, कैसे पता चलेगा? हमने सोच लिया, जैसे प्रभात कहते हैं, लिखा अनुवाद कमेंट्री में, कि सत्य कहा कभी हम जो रस्सी है अंधेरे में देखे तो सांप लगता है। अब भी सांप भी सत्यता है, रस्सी भी सत्यता है, लेकिन अंधेरे में रस्सी को सांप समझना हमारा इल्यूजन है। मैं गांव वाला व्यक्ति हूं। गांव में एक बहुत बड़ी कथा प्रचलित है कि अपने गांव के भूतों से डर लगता है और दूसरे के गांव के कुत्तों से डर लगता है। परसेप्शन। क्योंकि अपने गांव में हमें मालूम है ये यहाँ पे मरा, ये यहाँ पे था, यहाँ पे सब मालूम है। दूसरे गांव में नहीं पता ना कौन कहां पे मरा, तो वहां कुत्तों से डर लगता है, वो कर दिया तो हम डर जाते थे। अगेन क्यों बोल रहा हूं मैं? परसेप्शन। हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन। श्रेयो वदन्ते नेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। हमारी जैसे रुचि है, हमारे जैसे कर्म है, हम उसी तरह व्याख्यान करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण को एक तो भगवान नहीं मानते हैं, तो सुप्रीम पर्सनालिटी की बात तो छोड़ो। लेकिन भागवत में जितने व्यक्ता हैं, चाहे वो दानव भी क्यों न हो, वो भी भगवान को भगवान मानते हैं, अदृश्य शक्ति मानते हैं, मानते तो हैं। तो लीजिए टेक्स्ट 87, विरुद्धार्थ कहे तुम्ही, कहते कर रोष, तो मार अर्थे अभि अविमिश्र विधेयम स दोष। डायरेक्ट क्लास में जाता हूं। यू से समथिंग कॉन्ट्रडिक्टरी and become angry. When this is pointed out,
Your explanation has the defect of a misplaced predicate. This is an unconsidered adjustment. आपने देखा है, सुना है कि जब चंद्रयान-3 मून की कक्षा में जब वो उतरा, तो हर आदमी जो साइंस नहीं जानता वो भी अपने वो कहता था, अरे ऐसा हुआ होगा, ऐसा करना चाहता, ऐसा करना चाहता, अरे ऐसा होता, ऐसा करना चाहता। हर आदमी प्रेडिकेट को न जानते हुए, तो सत्यता को न जानते हुए, क्योंकि बोलना है और बोलने में आप कुछ भी बोलो, कौन रोकने वाला है। और इस प्रकार हम उस असत्य को सत्य मानते हैं। अभी मैं गांव की बात कर रहा था, तो जब गांव में हमें कोई सत्य बोलना था, ये किसको कहना था मैं सत्य बोल रहा हूं, तो हम कहते हैं विद्या की कसम, या कभी कभी कहते हैं गाय माता की कसम। अब तुम झूठ भी बोल दो, अगर किसने गाय माता की कसम खा ली, किसने विद्या की कसम खा ली, उसको सच माना जाता था। विद्या की कसम पहले इसने मारा, या गाय माता की कसम गाली पहले इसने दी। कारण जो भी रहा हो, अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए हमें प्रिपोजिशन लेते थे। मैं यहां क्यों कह रहा हूं कि यहां पे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कभी कभी लोग शास्त्र को उदाहरण देते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो लोग कहते हैं सनातन धर्म में इतने देवी देवता क्यों, जबकि यजुर्वेद में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म, बाकी तो है ही नहीं कोई, आप कितने क्यों। अरे हम कहते हैं इतने नहीं है, एक ही हैं, लेकिन उसके अलग अलग रूपों की हम बात करते हैं। कैसे? जैसे आप किसी के पिता हो सकते हैं, पति या पत्नी हो सकते हैं, चाचा ताऊ हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं। तो आपके अलग अलग पोजीशन है कि आप तो एक ही है ना। क्या हम कह सकते हैं आप अनेक हैं? नहीं, आप अनेक चीज करते हैं। और उसके साथ जैसे हम उदाहरण देते चीनी का डब्बा, इसका डब्बा, उसका डब्बा, ये है नहीं। अब लोग मानते कि नहीं साहब इतनी इनके तो इतने प्रूफ है। हाँ, भगवान के अनेक रूप मिल सकते हैं। भगवान के रूप जितने बालू के कण हैं, उससे भी ज्यादा भगवान के रूप हैं। हम कैसे समझते हैं? हमारा आर्गुमेंट कभी कभी दूसरों को नीचे दिखाने के लिए होता है, और इसलिए आवर एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो डिफेक्टिव। अब यहां पे देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वेद व्यास, असित देवला की बात कर करके यहां पे रूपा गोस्वामी बात कर रहे हैं। यही परंपरा है, यही परंपरा है कि अपने परवचन में, हम कहते हैं परवचन, अपने परवचन में वो वचन बोलने हैं जो हमारे वैष्णव ने कहे हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार हम थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल तत्व है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनको रघुनाथ दास आदियों का जो है आशीर्वाद मिला, लेकिन फिर भी कह रहे नहीं, रूप गोस्वामी जब कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, उसमें गलती के कोई चांसेस नहीं है। आपने देखा होगा, आपने एहसास किया होगा कि बहुत सारे लोग आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं, जबकि एक प्रश्न के 1000 उत्तर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उत्तर दे दिया उस पर आप लोग शांत हो जाते हैं कि ये गलत क्यों बोलेंगे। अगर हमने गलत बोल भी दिया फिर भी आप जो यकीन कर लेंगे। क्यों यकीन कर लेंगे? क्या क्या पढ़ते नहीं है? आपको पढ़ने का समय नहीं है। तो जब पढ़ने का समय नहीं है तो बोले ठीक है, ठीक ही बोल रहे होंगे, ये तो बहुत पढ़ते हैं, चाहे ना पढ़ते हो बहुत पढ़ते हैं। तो इसलिए कभी कभी हमें डिफेक्ट हो जाता है। हमारे इस्कॉन में
बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं कि लोगों ने अलग अलग गुरु बना दिए हैं। अगर आप किसको बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने कुछ कह दिया, तो आप इस्कॉन छोड़ करके उनके साथ आप मिल जाएंगे। ये गलत क्यों बोलेंगे? अरे गलत नहीं बोलेंगे, चाहे बोलेंगे, आपने कुछ स्वाध्याय नहीं किया है, इसलिए आप इस बहकावे में आ गए और उस संस्था को आप छोड़ के चले गए, जिस संस्था के प्राण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद है। तो इसीलिए इसके कहते अंधविश्वास। आप किसी भी अंधविश्वास मत कीजिए जब तक ये स्वाध्याय न हो, साधु गुरु से न पूछा जाए, तब तक अपने जीवन को मत बदलिए। इसलिए जो भी कोई एक्सप्लेन करेगा, अगर परंपरा के सिद्धांतों पर नहीं चलता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन डिफेक्टिव होगा। ऑलराइट, चलो दूसरा देखते हैं 88 में क्या लिखा है। यानर भगवत हाइते अन्य भगवता स्वयं भगवान शब्देर ताहाते शत सत्ता। Only the personality of Godhead, the source of all divinities, is eligible to be designated Swayam Bhagavan or the primeval Lord. कांक्षतः कर्मणा सिद्धम प्रबंधे अन्य देवता। अगर भगवान कृष्ण के द्वारा मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस भगवान को छोड़कर उस भगवान के पास जाते हैं जो भगवान है ही नहीं। चाहे देवी हो, देवता हो, पेड़ के नीचे हो या भयवान जंगल में उसका मंदिर हो, हम उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अब कृष्ण घर में बैठे हुए हैं, ये सुन नहीं रहा है, तो लोगों ने कहा भाई वो सिद्ध देवता है, वो सिद्ध पीठ है, हम वहां चले जाते हैं और अपने भगवान को पीठ देकर चले जाते हैं। भगवान की माथा पड़ के रह जाता है, अरे इसको क्या हो गया। तम तम नियमस्ताय प्रकृतिया नियता स्वयं। भगवान कहते चलो अब मैं क्या करूं, इसको भौतिक चीज में बहुत इसका लाभ है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर लो। तो देवी देवताओं के द्वारा इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन वो देवी देवता जो है वो प्राइमेबल लॉर्ड नहीं बन सकते हैं। क्यों? कि वो है ही नहीं। और इस पे अलग अलग पंथ में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग देश में अलग अलग भगवान है। हमारा भारत तो इतना सुंदर है कि हर गांव का अपना एक भगवान है, और वही सुप्रीम पर्सन गॉडेड है। अपना अपने क्यों बनाया? क्योंकि भगवान कृष्ण से इच्छा ही नहीं पूरी हुई। अब क्या करें भाई, हमें जीना तो है। ये मालूम है कितना जिएंगे हम? अरे यार 100 साल से ज्यादा कौन जिए? ज्यादा से ज्यादा यहाँ तो 70-75 में जो है राम नाम सत्य हो जाता है। अगर जी भी लिया तो क्या कर पाएंगे? न ढंग से खा पाएंगे, न ढंग से सो पाएंगे, न ढंग से सोच पाएंगे, न ढंग से सुन पाएंगे। अगर जी भी लिया तो क्या जिया? और जब हमारे साथ, हमारे पास समय है, शक्ति है, साधन है, तब हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए वो कार्य करते हैं जिस कार्य करने से हमें बंधन मिलता है, बंधन छूटता नहीं है। और हम खुश होते हैं बंधन पाने के लिए, बंधन अपने आप को बांधने के लिए बड़े खुश हैं। तो मतिर्न कृष्णे परतो सतो हुआ, ये सब क्यों? हमारे कृष्ण मति नहीं है। कभी कभी आती है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहती है। जब कभी ज्यादा परेशानी हो जाए
चलो यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये करो वो करो, और हमारा काम हो जाता है। अब फिर हम बोले अरे चलो यार, भगवान कृष्ण की कृपा से हम देवता में गए, हमारी इच्छा पूरी हो गई। भगवान कृष्ण कभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करेंगे ही नहीं। प्रभुपाद जी का उदाहरण ले लीजिए कि प्रभुपाद जी तो बचपन से भक्त थे, उनकी कौन सी भौतिक इच्छाएं भगवान ने पूरी की, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं 11 साल में ही इतना काम किया कि आज भी उनके नाम का डंका बज रहा है, और आने वाले 10,000 साल तक उनके नाम का डंका बजेगा। अगर प्रभुपाद जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती, तो कौन उनका नाम लेता? खाली एनिवर्सरी के दिन उनके मूर्ति पर माला चढ़ाई जाती, लेकिन आज हर हर पल, हर समय, हर घड़ गुरु पूजा होती है, और हम कहते हैं प्रभुपाद के जो मंदिर है उसमें सिर नवाते हैं, और इस प्रकार चल रहा है। क्यों? कि उन्होंने अपने आप को कृष्ण के परायण कर दिया। हम सब परायण होना चाहते हैं, लेकिन हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल हम परायण होना चाहते हैं, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं, कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, जो मैंने इतने बड़े बड़े घर बनाए उनका क्या होगा, जो मैंने जमीन लिया क्या होगा, जो मैंने पहाड़ी खरीद की उसका क्या होगा। भगवान देखने तो नहीं आएंगे ना, उसके लिए तो मुझे देखना पड़ेगा ना। और इस प्रकार भगवान के बारे में जानते हुए भी हम वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिस कार्य को करने के लिए हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। आहार निद्रा अभय मैथुनम च सामान्य ये तत् पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु विस्मान। हमारा कार्य वही कार्य जो पशुओं को कार्य है। बस हम जो है कप प्लेट में खाना खाते हैं, वो जमीन में मुंह से खाना खा लेते हैं। समाज उनका भी है, समाज हमारा भी है। बच्चे उनके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं। घर उनके भी हैं, घर हमारे भी हैं। बहुत सारे जानवर घर नहीं होते, तो वो जो आसमान है वही उनका छत होती है, जमीन उनका बिस्तर होता है। कौन सी बड़ी चीज है, उन्होंने जो है 200 रियाल का गद्दा ले लिया, तो कौन सी बड़ी बात है। जब हम सो जाते हैं तो हमें मालूम है हम गद्दे में सो रहे हैं? नहीं। जब हम सो जाते हैं हमें मालूम है हमने क्या प्रसाद खाया? नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज हम मनुष्य शरीर में आए हैं, कुछ देर के लिए सही, कुछ समय के लिए ही सही, प्रपात के अनुकंपा से कम दिन में कुछ पल, कुछ क्षण हम भगवान के लिए समर्पित हो रहे हैं। समझे ना समझे बात दूसरी है। भगवान ने कहा ना कि स्वल्पम अप्यसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा भी धर्म का कार्य किया जाए, और धर्म क्या है? भगवान की सेवा की जाए कर्म, मन और वचन के द्वारा, तो हमारे लिए वही फलीभूत होगा। तो आइए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। तो आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो और कोई इच्छाएं हों